بتا سکتا ہوں جس کے لیے فضل کے تحت میں یہاں پر کھڑا ہوں، اور اس کی مدد سے، اس کی رہنمائی سے ہی انسان سامنے آتا ہے اور اس کی حمد و تعریف کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا نہایت شکر گزار مجھ جیسے ناچیز شخص کو وہ استعمال کرتا ہے۔ میں اپنے پاسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر موجود نہیں، اور انہوں نے مجھے یہ شرف حاصل بخشا کہ میں آپ تک خدا کا کلام پہنچا سکوں۔ بے شک یہ میرے لیے ایک آنر ہے اور میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاؤں۔ آج ہم ایک ایسے پروفیسر، ایک ایسے استاد، ایک ایسے رہنما کے متعلق سیکھیں گے جس کی ایگزامپل، جس کی مثالیں ہم اس سے دیتے ہیں اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس کے چال چلن سے، اس کے طور طریقے سے ہم نے ہمیشہ بہت سیکھا ہے۔ آئے میرے ساتھ مل کر نکالیں انسال پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ سلیمان بادشاہ کی انسال، اس کا چھٹا باب اور اس کی چھٹی آیت، چھٹی آیت سے لے کر ہم تھوڑا 10ویں آیت تک پڑھیں گے، 11ویں آیت تک۔ آئے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، تو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی پورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، کب تک پڑا رہے؟ نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہے تو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسا استاد ہے جس کو ہماری رہنمائی کے لیے سلیمان بادشاہ نے چنا۔ کیونٹی کی مثال اس نے دی ہے کہ اس کی روشوں پر، یعنی کہ اس کی عادتوں پر غور کرو، یہ کیا کرتی ہے۔ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جس کی اکثر مثالیں ہماری کتابوں میں ملتی ہیں کہ چونٹی سے سیکھو۔ سلیمان بادشاہ بھی یہی کہتا ہے کہ چونٹی سے سیکھو۔ آج ہم اس سے سیکھیں گے، اس کی عادتوں پر غور کریں گے، اس کے چال چلن پر غور کریں گے کہ یہ کیا کرتی ہے، کیسے ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اس سے پہلے جو لفظ لکھا گیا ہے چونٹی سے پہلے، وہ ہے آئے کاہل، اور ہم کاہل پر بھی غور کریں گے تھوڑا سا کہ کاہل کون ہوتا ہے، کون پڑا رہتا ہے اور کون 4 مہینہ چھوڑتا رہتا ہے اور سویا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ آج ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے یہ مثال کیوں دی، کیسے اس نے مثال دی، اس کے پاس اتنا نالج کیسے ہے۔ آج کل تو ہم نیٹ سے بہت دیکھ سکتے ہیں، فیس بک سے بہت دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے بہت دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس نے اس کو کیوں چنا؟ کیونکہ یہ ایک انتہائی سمجھدار قسم کا جانور ہے، انتہائی سمجھدار ہے۔ اور ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم انسال، جو اس نے انسال میں واقعہ بیان کیا ہے سلیمان بادشاہ نے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پہلا سلاطین کہ سلیمان بادشاہ کون ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 3 باب، اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ایسے ہم پڑھیں گے، اور بادشاہ جب ان کو کیا تاکہ قربانی کرے، بادشاہ یعنی سلیمان بادشاہ، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی۔ جب ان میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور اس نے کہا مانگ، میں تجھے کیا دوں۔ اب ہم نامی آیت میں پڑھتے ہیں سلیمان بادشاہ کیا مانگتا ہے،
तू अपने खामिन को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदा को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। क्या उसने मांगा? एक समझने वाला दिल, यानी कि उसने अक्ल मांगी। और खुदा ने खुश होकर उसको क्या कह दिया, ये हम बाद में आयत में पढ़ते हैं। खुदा ने कहा, तो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानत ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना तो तेरे बाद तुझसे बर्बाद होता। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानत ना होगा। और अगर तू मेरी राह पर चले और मेरे आईन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद लाइट पीछे जल रही है, तो मैं तेरी उम्र लाइट जल रही है पीछे, उसने लाइट पीछे जल रही है। उसने दौलत नहीं मांगी क्योंकि ये जाने वाली चीज है, शोहरत नहीं मांगी क्योंकि इज्जत और जिल्लत ये जाने वाली चीजें हैं। ना इज्जत हमेशा रहती है, ना जिल्लत हमेशा रहती है। ये सब कुछ सुबह बर्बाद होने वाला चीजें हैं, फनी चीजें। उसने खुदा से अकल मांगी और खुदा ने उसको दौलत दी, इज्जत दी, और आखिरी चंद अल्फाज में लिखा है, तेरी उम्र को दराज करूंगा, और उसको उम्र की दराजी की अता की। बहुत फजल खुदा ने उस पर किया, और उसने भी अक्लमंद से सब कुछ किया, और इस अक्लमंदी का इस्तेमाल उसने अपनी बादशाह में किया। आपको याद होगा कि दो औरतें, जिनमें से एक का बच्चा जो था वो मर गया था, और सुलेमान बादशाह ने बहुत एक मुश्किल मुकदमा था जो उसके सामने लाया गया। एक औरत ने अपना बच्चा जो था अपने नीचे देकर मार लिया, और सुबह उठकर दूसरी के बच्चे को कहती है कि ये तो मेरा। अब दोनों ही उसकी दावेदार थी, और सुलेमान बादशाह के पास वो केस आया, और दोनों ही इंतहाई जोरदार तरीके से उसकी वकालत कर रही थी कि ये मेरा है। तो सुलेमान बादशाह ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक तलवार लाओ, मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, आधा उसे दे देता हूँ, आधा उसे दे देता हूँ। तो जिसका बच्चा नहीं था उसने कहा हाँ ठीक है, इसके दो टुकड़े कर दो, आधा मुझे दे दो और आधा इसे दे दो। लेकिन जिसका बच्चा था उसने कहा नहीं, इसे ही दे दो, मैं नहीं लेती, मैं कम से कम इसे जीता तो देखूंगी। तो सुलेमान बादशाह समझ गया कि कौन इसकी असल मां है, और उसने उस हिकमत से समझा जो हिकमत उसको खुदा ने दी थी, जो फजल उसको खुदा ने दिया था, और इसके फजल के वसीला से, इसकी हिकमत के वसीला से खुदा की हैकल बनी, और पूरी समझदारी के साथ इंतहाई कीमती चीजें उसने हैकल में लगाई। सोना के बारे में लिखा है कि चौका सोना, बहुत ज्यादा सोना उसने हैकल में इस्तेमाल किया, अच्छी से अच्छी लकड़ी इस्तेमाल की, और उसने अपने इर्द गिर्द के ममालिक से ये सारी चीजें मंगवाई। हम एक वाला और देखते हैं सुलेमान के बारे में, दूसरी तवारीख उसका नामा बाब, दूसरी तवारीख उसका नामा बाब, उसमें एक वाक्य है कि सुलेमान की अपनी अक्लमंदी की वजह से बहुत शोहरत थी, दूर दूर इलाकों में उसकी शोहरत थी कि सुलेमान बादशाह बहुत अक्लमंद। तो एक इलाके की मलका, सबा की मलका, सबा इलाके का नाम है, वहाँ की मलका ने जब ये शोहरत सुनी तो उसने सोचा मैं जाकर देखूं ये कैसा है। यहाँ पे नामे वाक्य पहली आयत से पढ़ते हैं, जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़े जलौह और ऊँटों के साथ, जिन पर मिसाला और बाअफराद सोना और जवाहिर थे, यरूशलेम में आई, और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया, और सुलेमान से कोई बात पोशीदा ना थी, यानी उसके पास सारा इल्म था, एक एक सवाल का उसने जवाब दिया। और यकीनन वो जो इतनी दूर से उसको आजमाने के लिए आई थी, उसने बहुत मुश्किल सवाल किए होंगे। जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उसके घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमत
और उसके खादमों की नशिस्त और उसके मुलाजमों की हाजिर बाशी और उनकी पोशाक और उसके साथियों और उनके लिबास को और उस जीना को जो जिससे वो खुदावन के मस्कन को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। लिखा है उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से न देख लिया उनकी बातों को बावर न किया। और देख जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं। यानी कि लोगों ने कितनी तारीफें की थी कि तुझ में बड़ी अकल है, तुझको मैंने देखा है तो मैंने समझा कि वो आधा भी नहीं। और देखिए कि सुलेमान ने अपनी अक्लमंदी से क्या कुछ किया। लिखा है कि उसका घर बहुत खूबसूरत था। ये भी अक्लमंदी से इंसान बना सकता है। बाज़ लोग मैंने देखा है कि बहुत कमाई करते हैं, बहुत कमाई करते हैं, गाड़ियां तक ले लेते हैं, लेकिन घर बनाना नसीब नहीं। लिखा है कि घर जो है ये खुदा बनाता है, इंसान की मेहनत अबस है और खुदा को खुश करने की जरूरत है और खुदा फिर घर देता है। और लिखा है कि उसका घर बहुत खूबसूरत था और उसके दस्तरखान की नेमत जो कुछ उसके दस्तरखान पर होता था वो देखकर हैरान रहे कि कैसी कैसी खूबसूरत चीजें हैं, कैसी कैसी एनर्जेटिक चीजें हैं जो खाने को होती हैं वहां पर, और ऐसी चीजें उसने कभी देखी नहीं थी। और उसके खादमों की नशिस्त, अपने खादमों को भी इतना उसने एजुकेट किया हुआ था, अपने नौकरों को भी कि किस तरह बैठना है, किस तरह चलना है, किस तरह उठना है, किस तरह बात करनी है। और नौकर भी उसकी अक्लमंदी की वजह से नहायत अक्लमंद थे। फिर उसके मुलाजिमों की हाजिर बाशी, यानी कि मुलाजिम भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते थे बातों का, और उनकी पोशाक बहुत अच्छी थी। और उसके साथियों के लिबास जो वहाँ पर शरबत पिलाने को, मैल पिलाने को थे, उनके लिबास बहुत अच्छे थे। और अपने महाल से हैकल तक उसने मदीना बनाया और एक सीढ़ी बनाई थी, और वो बहुत खूबसूरत सीढ़ी थी जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और जब उसने देखा तो उसके दिल में होश। और ये सब कुछ सुलेमान बादशाह की अक्लमंदी की वजह से था। और उसने ये वाकया ही इंतहाई अक्लमंदी की बात की कि खुदा से उसने हिकमत मांगी। और जब इतना अक्लमंद शख्स है तो फिर ड्यूटी की जब वो मिसाल दे रहा है तो यकीनन ये एक बहुत ही आला मिसाल है। यकीनन उसने इसमें बहुत कुछ परखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ देखा होगा कि ड्यूटी कैसे काम करती है। लेकिन ड्यूटी पर बात करने से पहले हम जरा काहली पर बात कर लें, सुस्ती पर बात कर लें जो दिन रात हमारे सरों पर सवार रहती है। हम कुछ नहीं कर पाते। मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट की बात करता हूँ। जब उसे काम मिलता है स्कूल से तो वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद करता हूँ, थोड़ी देर के बाद, अभी टाइम है, थोड़ी देर के बाद करता हूँ, शाम को कर लूंगा। फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह आ जाती है, वो काम नहीं कर पाता। और जब क्लास में जाता है तो वहां पर फिर जाकर शर्मिंदगी होती है, डंडे पड़ते हैं, इंसल्ट होती है, लेकिन उसने अपनी सुस्ती की वजह से काम नहीं किया। और जब स्टूडेंट घर में आता है तो यूनिफॉर्म का शर्ट कहाँ पे होती है, पैंट कहाँ पे होती है, सॉक्स कहाँ पे होते हैं, कुछ पता नहीं होता कि मैंने चीजें कहाँ रखनी है, और कोई एहसास नहीं होता। और सुबह जब उठता है तो उसे तैयार होने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही होती, क्योंकि सुस्ती और काहली ने उसको डस लिया और वो कुछ नहीं करता। इसी तरह बहुत से लोगों को देखा है जो काम नहीं करते और फ्री में खाना चाहते हैं। बहुत से लोग फ्री में खाना चाहते हैं, काम नहीं करते। नौकरियों पर हैं तो नौकरियों पर वो चाहेंगे कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस महीने के बाद जब तनख्वाह आएगी वो लेने हम चले जाएं। मेरे अजीजों, ये बहुत बुरी बात। बेटियों को मैं लेता हूँ जो अपने माँ की खिदमत नहीं करती, जो अपनी माँ का हाथ नहीं बटाती, जो अपनी माँ की मदद नहीं करती, और वो सारा दिन करती है, वो सारा दिन डांटती है, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं होती। नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, उनकी जरा मदद नहीं करते। बाप सारा दिन काम करके जब वापस आता है तो उसको कपड़े तक नहीं, उसको पानी तक नहीं पिलाते। मेरे अजीजों, ये सुस्ती और काहली जो है ये इंसान को ले डूबती है, वो कहीं का नहीं रहता। फिर सारी उम्र वो दूसरों को देखकर कहता रहता है कि इसको खुदा ने बहुत दिया है, लेकिन जब दिया है तो यकीनन उसने बहुत मेहनत भी की। डॉक्टर को आप लें, डॉक्टर एक दफा देखने के 2
बाद में लेते हैं। और अच्छे हॉस्पिटल में जब विजिट करते हैं तो प्राइवेट जो कमरे होते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं, जाकर कुछ हाँ जी अब क्या हाल, आप ठीक है, आप इसे कुछ देते हैं, जी देते हैं, और डॉक्टर चला जाता है और बिल में कम से कम 3,000 रुपये डर जाता है कि डॉक्टर ने विजिट किया था। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर ने मेहनत की है। डॉक्टर रात को देर तक पढ़ता रहा था, उसने बहुत मेहनत की, फिर कहीं जाकर उसको डिग्री मिली। और हम देर तक सिर्फ कहते हैं किसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगी। एक नौजवान के बारे में मैंने सुना कि उसने कहा कि खुदा देता है, खुदा ने पैदा किया तो खाने को भी देता है। वो दीवार पर चढ़ गया, उसने कहा खुदा ही मुझे देगा। घर वालों ने कहा ठीक है खुदासी ले। वो बैठा रहा और दूसरे तीसरे दिन बेहोश होकर नीचे गिरा तो बाजू हड्डियां टूटी और घर वालों ने दूध में घी भी डालकर अच्छी खुराक दे दी। उसने सोचा कि खुदा फिर देता तो है लेकिन कम से कम बाजू हड्डियां तोड़ कर देता है। इसलिए किया हुआ काम होता है, जो मेहनत से कमाई की होती है, उससे इंसान खुश होता है, उसमें बरकत आती है और वो कभी रायना नहीं। लेकिन सुस्ती इंसान को ख्वाब बर्बाद कर देती है। सुस्ती के बारे में आए हम एक हवाला देखते हैं। पीछे हो जाओ। इंसान 26 बाब सुलेमान बादशाह सुस्त के बारे में बड़ी तफसील से बयान करता है। इंसान 26 बाब उसकी 30वीं आयत से लिखता है, मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के ताकिस्तान के दोगे सही, यानी कि खेत था और बाग था, पीछे अंगूरों का बाग था। मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने कहा किसका बाग था? वो काहिल का। कि मैंने वहां पे क्या देखा? और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से नाटक मैं तेरा डायरेक्ट बता दूंगी तो अपने आप सोखा ही हो जा। दीवार गिराई गई थी। अब मैंने देखा जब कलाम खत्म हो जाएगा मैंने उसको देखकर अक्लमंदिया काहिल को देखकर। कई लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की गलतियों को देखकर सीखते हैं और कईयों की आदत होती है कि गलतियां करके सीखते हैं। तो दूसरों को देखकर इंसान को सीखना जो है ये उसको फायदा देता है, बजाय ये कि इंसान खुद गलती करके सीखे। कई नौजवान ऐसे होते हैं, उसको सारी उम्र कहते रहो इस मोड़ पर खड़े नहीं होना, ये बुरी बात है, ये तेरे लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन वो सारी उम्र नहीं मुड़ेगा जब तक उसको जूते ना पड़े। और जब उसको पड़ जाते हैं जूते फिर वो दूसरों को नसीहत करता रहता है कि इस जगह पे ना खड़े हो। तो सीख के इंसान को देख के सीखना चाहिए। दूसरों की कमजोरियों से, दूसरों की गलतियों से इंसान को देख कर सीखना चाहिए, ये नहीं कि इंसान को गलतियां करके सीखना चाहिए। तो यही कहता है, तब मैंने देखा और उस पर गौर किया, मैंने उस पर निगाह किया और इबरत पाई। मैंने सीखा उससे थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को अभी भी आ रहा है। और इसी तरह तेरी मुखलिसी राज़न की तरह और तेरी तंगदस्ती मुसल्ला आदमी की तरह यानी कि गरीबी तेरे पर आ जाएगी। अगर तू पड़ा रहेगा, अगर तू सोया रहेगा तो फिर तेरे पास कुछ नहीं आ सकता। मुफलसी है और तंगदस्ती ये तो तेरे लिए तेरा मुकद्दर करे अगर तू काहिल रहेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि काहिली से इंसान जान छड़े, इंसान काहिली से निकले। इब्रानियों के बारे में बात की बाद में आयत में लिखा हुआ है, बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त कर। जो आपके सुस्त हाथ पड़े हुए हैं, जो उठने का आपका दिल नहीं करता, जो घुटने रह गए हैं, जवानी में भी रह गए हैं, तो तुम्हें उठना पड़ेगा, इस सुस्ती को छोड़ना पड़ेगा अगर तुम तरक्की करना चाहते हो। एक शख्स अनपढ़ शख्स को मैं जानता हूँ जो एक फैक्ट्री में रंगाई का काम करता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 92-93 की, जब पैसे की बहुत वैल्यू थी। आजकल तो हजारों की कोई वैल्यू नहीं है, उस वक्त बहुत वैल्यू थी पैसे की। और 25 से लेकर 30,000 वो अनपढ़ शख्स डाई का काम करता था, डाई मास्टर था, और 25 से लेकर 30,000 तक लेता था, और वो अनपढ़ था। लेकिन उसने फिर मेहनत की, उसने काम को सीखा और उसको भी खुदा ने दिया।
मेहनत करना जरूरी है। इंसान ने अगर तालीम नहीं हासिल की तो उस दूसरे काम, बहुत से काम हैं, उनमें मेहनत करनी चाहिए। कुंसियों के साथ उसके तीसरे बात की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, आगे आदमियों के लिए। यानी कि जहां पर भी आप काम करते हैं, ये ज़हन में लाजमी रहना चाहिए, हमें खुदा देखता है, हमें मसीह देखता है। हम ये काम अपने बॉस के लिए नहीं कर रहे, हम ये काम अपने खुदा के लिए कर रहे हैं। और ईमानदारी से काम करना चाहिए जहाँ भी। मेरे चीजों, सुस्ती जो है वो इंसान को दबोती है। इंसान को पैदा किया गया है खुदा ने कि मेहनत करे, और इंसान को सारा दिन टीवी देखने के लिए पैदा नहीं किया, इंसान को सारा दिन गेम्स खेलने के लिए पैदा नहीं किया, ताश खेलने के लिए पैदा नहीं किया, इधर उधर घूमने के लिए, आवाज़गी के लिए पैदा नहीं किया। इंसान को पैदा किया है आराम के लिए। रात का वक्त जरूरी है, उसमें आराम किया जाए, लेकिन सारा सारा दिन चारपाइयों पे पड़े रहना और सारा सारा दिन इधर इस गली को दूसरी गली से तीसरी गली, ये सारा दिन फिरते रहना, मेरे अजीजों, एंड पर आपके लिए कुछ नहीं है। मुफलसी है, तंग दस्ती है, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है उनके पास बहुत कुछ है, उनको उनकी खुदा भी मदद करता है। एक मुहावरा इंग्लिश का, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करते हैं खुदा फिर उनकी मदद भी करता है, और जो खुद ही चारपाई में पड़े रहेंगे उनकी मदद क्या होगी? उनसे वो भी छीन लिया जाता है जो उनके पास है। इसलिए आज से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जितने नौजवान या जितने अफराद मेहनत नहीं करते, आज से मेहनत का वतीरा बनाएं, मेहनत को अपनी आदत बनाएं और आगे बढ़े और खुदा उनकी मदद करे। और टीवी के बारे में बात कर रहा था कि टीवी पे हम लोग देखते हैं, हम उसी के शिकंजे में रहते हैं। जब हम एक ड्रामा देखते हैं सुबह अगर देखते तो शाम तक हम उसके शिकंजे से निकल नहीं सकते। ये मेरे चीजों, मेरे बहन भाई, ये समझ ले, ये शैतान का एक ऐसा हथियार है जो आपको सारा दिन निकलने नहीं देता। सारा दिन आपके सर पर उसका शिकंजा कसा रहता है और सारा दिन आप उस डायलॉग की बात करते हैं, उस ड्रामे की बात करते हैं। जो भी मिलेगा आपने उससे यही कहना है, हाँ वो किस्सा आपने देखी, वो ड्रामा आपने देखा। ये सारा कुछ इस बात की निशानी है कि आपका ज़हन शैतान छोड़ नहीं रहा और उसने आपके ज़हन को जकड़ा हुआ है। तफरीह करना जरूरी है, देखना भी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी गेम्स खेलनी चाहिए। तफरीह इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन हर वक्त कि आप अपने होमवर्क छोड़कर, आप अपनी चीज़ें छोड़कर, आप अपना काम छोड़कर आप सिर्फ ये काम करें, तो मेरे चीज़ों जो कुछ आप देखते हैं वही आपकी ज़िंदगी में चला जाता है, हमेशा के लिए आपके ज़हन में रह जाता है। यू आर व्हाट यू ईट, जो कुछ तुम खाते हो तो वही हो, चाहे आप कानों से खाते हो, चाहे आप आंखों से खाते हो, चाहे आप मुंह से खाते हो, जो कुछ तुम देखते हो वही हो। अगर गंदगी देखोगे तो तुम गंदे बनोगे, अगर अच्छाई देखोगे तो तुम अच्छे बनोगे। इसलिए लिखा है कि बुरी सोबत इंसान को बिगाड़ देती है और अच्छी सोबत से इंसान बहुत कुछ सीखता है। इसलिए हमें आगे बढ़ने और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि वो जो काहिल का लेबल है वो हमसे हट जाए और हम यूनिटी की तरह आगे बढ़ें। बस एक बात अब हम ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी के बारे में लिखा गया है कि इसकी 11 से लेकर 12,000 तक एग्जाम है। दुनिया में 11 से लेकर 12,000 तक इसकी एग्जाम है। ये बहुत बड़े झुंड में रहती है। ये मैंने तो खेत में देखा इसका घर, और इनकी कानूनी होती है। मैंने तब का कोई पकड़ा और 11 से लेकर 12,000 एग्जाम की जब मैंने सुना इसके बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि आदम ने नाम कैसे रखा, क्योंकि सबसे दुनिया में पहला काम जो था वो आदम को ही मिला था, सबसे पहला काम, और वो था कि तूने इनके नाम रखने हैं, जानवरों के, इंसेक्ट्स के, जो भी चीज़ें हैं, परिंदे हैं, हर चीज़ के नाम रखने हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसने नाम रखा। और उसने एक बड़े जानवर को देखकर हाथी यही कहा, उसको अगर हाथी कहा है तो उससे छोटे जानवर को उसने देखा, ये नहीं कहा कि ये छोटा हाथी है, बल्कि उसने अगर शेर को देखा होगा तो उसको
शेर ही उसने नाम रखा था। ये नहीं कहा कि वो बड़ा हाथी है, ये छोटा हाथी है, ये उससे दरमियाना हाथी है। मुख्तलिफ नाम उसने रखे सब जानवरों के और बड़े सूटेबल नाम रखे। और उसने अपना काम बड़ी एहतियात से और बड़ी अच्छे तरीके से किया जब तक हवा उसकी ज़िंदगी में नहीं है। उस पर कभी उसके साथ कुछ बहुत। और मैं समझता हूँ उसकी हार्ड ड्राइव जो थी कंप्यूटर की, मंगला जो उसके अंदर ज़हन में थी, वो बड़ी पावरफुल थी। हार्ड ड्राइव आजकल के इधर उधर नॉर्मल होंगे, कार्ड की बात कर लें, 2 GB का कार्ड, 8 GB का कार्ड, 16 GB का कार्ड, ये हार्ड ड्राइव होती है। और जितना कार्ड बड़ा होता है उतने उसमें गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो आदम की हार्ड ड्राइव कितने GB की? वो बहुत बड़ी होगी जो उसने सभी जानवरों के नाम रखे। ये एक पापा कॉलोनी में करने जो में कॉलोनी की मैं बात कर रहा था, जो उसने जितने घर बनाए होते हैं, एक घर में एक कॉलोनी में ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब होती है। हर चींटी का अलग काम होता है, उनकी शक्लें फर्क होती हैं, उनके काम फर्क होते हैं। कुछ सिपाही होती हैं, कुछ खाना लाती हैं, कुछ खाने को महफूज रखती हैं, कुछ सिर्फ अंडे देने वाली चींटियाँ होती हैं और वो अंडे देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। कुछ उन अंडों से सीधी अंडों को सीधी से मतलब उनको गरमाइश पैदा करती हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं और उसके बाद वो मर जाती है। और मेरे चीज़ों हम देखेंगे आज कि चींटी की खासियत क्या है। पहला उसका काम यह है तो मिलकर काम करती है। वो आपने देखा होगा कि जब चलती हैं तो सारी इकट्ठी एक तरफ को जा रही होती है और सारी मिलकर काम करती हैं। तो ये नहीं कहती कि ये मेरा काम है, ये तेरा काम है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कई दफा एक छोटी सी अगर इंसेक्ट मरा हुआ मिल जाए तो एक चींटी को अगर मिल जाए तो फिर उससे नहीं फेंका जा रहा तो फिर दूसरी उसके साथ मदद कर रही होती है और 8-8, 10-10, 20 में से एक चीज को लगी होती है और वो किसी को लेके जा रही होती है। तो ये नहीं कहती अच्छा मैं थकी मैं तो मेरा तू ले। इस तरह नहीं होता। हमारे घरों में इसी तरह ये सारा काम मैं नहीं करना है। वो मसीह की एक मिसाल, मसीह जब मरियम मगदलीनी वगैरह के घर गया तो उसके लाजर मरा हुआ तो उनके घर गया तो एक बहन तो उसकी खिदमत करने में लगी और दूसरी उसके पास बैठकर उसकी बातें सुन रही थी, कलाम मुकद्दस की बातें सुन रही थी। और वो कहती थी मैं तो देखो यीशु मसीह मैं तो इतना काम कर रही हूँ आपके पास बैठी रही। वो कहते हैं कि इसने अच्छी चीज़ सुन ली। तो इंसान को जब काम पहले बात हुई थी कि काहे नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए और उसको मेहनत से काम करना चाहिए। तो कलीसिया के लिए भी ये एक मिसाल है कि हम कलीसिया में भी रहते हुए मिलजुल कर काम करें। जो थोड़ा खुदा ने दिया है, जो नेमत खुदा ने दी है उसमें अपनी जान लगा। हर कोई अपना काम पूरी मेहनत के साथ करे। कलीसिया फिर जोर पकड़ती है, रूह कुदस की हजूरी फिर आती है, मज़ा फिर जाता है, इबादत में मज़ा फिर आता है जब वायर जब दिल और यक जान होकर मेहनत करती है। ये चींटियों से हमें सीखने को मिलता है कि वो मिलकर काम करती है। और चींटी की मिसाल इसीलिए उसने दी है कि खुदा के चाल चलन, खुदा के हुजूर में चाल चलन के लिए इसकी मिसालों पर गौर करो और देखो कि कैसे चींटी काम करती है, मिलकर काम करती है। कोई चींटी अकेली नहीं, ये मिलकर ग्रुप में रहते हैं। और घरों की मिसाल दे रहे, जब हम मिलकर काम नहीं करते तो घर बर्बाद होते हैं। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और वो लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होते। इसी तरह हम देखते हैं मरकज़ 3 बाब उसकी 25 आयत के मिसाल देखते हैं। जिनके पास बाइबल है वो जरूर निकालें। मरकज़ 3 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है और अगर किसी के घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रहता। तो मिलकर काम करने से घरों में मजबूती आती है। और अगर लड़ाइयाँ झगड़े हों, फूट पड़ जाए, एक दूसरे से नफरत होने लगे तो फिर मेरे अजीजों घर कायम नहीं रह सकते, घर उजड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह गिव एंड टेक, एक दूसरे की मदद करना। अगर एक से ज्यादती होती है तो दूसरे को बर्दाश्त करने की जरूरत है। अगर एक बर्दाश्त करता है और दूसरा डॉक्टर इधर में किस जगह है? इधर हम एक दूसरे से लड़ाई करते हुए हम कभी अमन नहीं ला सकते। हमारा अंगूठे का पताखा बजाओ, अंगूठे का पताखा बजाओ, अंगूठे का पताखा, एक दूसरे को पताखा बजा, पताखा। इसलिए मिलजुल कर रहना चींटी की तरह हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे चींटी वजन बहुत उठाती है, अपने वजूद से 30 से 100 गुना ज्यादा वजन उठाती है। मैं एक मिसाल दूं,
कि अगर एक चींटी 1 ग्राम की है तो वजन कितना उठा सकती है? 30 से लेकर 100 ग्राम तक वजन उठा। और मैंने देखा है कि वो बड़ी बड़ी चीजें भी एक चींटी भी किसी के ले जाने की कोशिश कर रही हो। तो इससे इंसान समझ सकता है कि अगर मुश्किल काम है तो चींटी से मिसाल दो। ये नहीं कि आज रास्ता खराब है तो हमें काम पे नहीं जाना। मुश्किल बेशक मुश्किल है, लेकिन पहुंचो, काम करो, ताकि आपका बॉस खुश हो, खुदा खुश हो कि ये एक मेहनती शख्स है। आप पर मुश्किल आ पड़ी है, जितनी बड़ी मुश्किल है वो खत्म हो जाएगी। आप चर्च में आए, जितनी बड़ी मुश्किल है कोशिश करें कि खुदा के हुजूर पीछे नहीं हटना, कदम पीछे नहीं उठाना, बल्कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर खुदा की तरफ आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। इसके बाद चींटी की एक और बड़ी अच्छी मिसाल है, ये खुराक अपने लिए जमा नहीं करती, बल्कि ये खुराक जब लेकर जाती है तो एक चींटी जब आती है खुराक लेकर जाती है तो वो रट के वापस आ जाती है। अगर उसके पास लॉक होता, अगर उसके पास कमरा होता, यकीन वो ताला लगा के जैसे हम करते हैं, लेकिन वो ताला लगा के नहीं आती। उसको लालच नहीं होता कि ये मैंने ही खाना है, वो रखती है जाकर, फिर वापस आती है, फिर दूसरी दफा लेकर जाती है। लेकिन हम लोग अपने खुराक की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कल का फिक्र ना करो, कल अपने लिए खुद फिक्र करेगा। और चींटी इस पर अमल करती है, वो लाती है खुराक, जमा करती है और फिर वापस चली जाती है और अपने काम को छोड़ती नहीं। इसके बाद अगर कोई चींटी मर जाए तो उसे कॉलोनी में नहीं रहने देती। चींटियां अगर कोई